Hello children, welcome to your English video class. Children, your preparation for evaluation 3 is started, you know that, and I'm revising chapters of evaluation 3 for you. I have already revised chapter 8 and 9 and chapter 10 is almost going to be completed. Explanation of the chapter I have already done, few exercises also I have started and given to you, difficult words of the chapter, finding verbs from the chapter, describing words from the chapter and question answers that are framed from the chapter, all that I have completed in previous videos. So in today's video we'll be doing some other exercises related to the chapter. Children, you know the chapter is about three little pigs. Let me revise quickly the story of the chapter. There were three pigs, Piggly, Wiggly and Squiggly. They lived in a forest. They used to play all day around and at night they used to sleep under a banyan tree. Then one day what happened, a bad wolf, a wicked wolf came to live in the forest and he began to eat animals in the forest one by one. The three pigs, they become very afraid, they become scared of the wolf, and then they decided that they must have their own houses because now it is not safe to sleep under the tree in open. So the three pigs decided to have their own houses. First, Squiggly, who was the most inactive, the laziest one, he decided to have his house of straw. He collected straw from the nearby farm and he put them together and made his straw house. And after making his straw hut, he asked his brothers to stay with him, but brothers refused because they wanted to have their own houses, so they said no to him. Then what happened that night, the wolf came to Squiggly's hut and he blew down his hut by huffing and puffing. Squiggly ran into the forest and then he reached his brother Wiggly. Wiggly was busy making his own house with sticks. Squiggly told him all that what happened to him, and then both of them, they built the house of sticks. They dug the sticks deep into the ground and then they finished their house, and they felt that their house was strong enough to protect them from the wolf. But they were wrong. The wolf came that night and again he blew down the house by huffing and puffing. Now the two brothers, they ran to Piggly to save their life. Piggly was also busy. He was building his house with cement and bricks. He was working hard and he was making his house with cement and bricks, and his house was not ready. Both the brothers were worried, but Piggly said that not to worry. If the three of them work together, they will definitely complete their house. They will definitely make a strong house before the night falls. So they worked hard and they made their house of cement and bricks. That night wolf came. He looked at the house of Piggly. He found it a bit different, but he tried the same trick. He huffed and puffed but could not blow down the house. He tried hard, he tried again and again, and he tried till he became tired, till he became weak. And after that, when he realized that now it is not possible to trouble the pigs, now it is not possible to eat them, he went away. Now the two pigs, that Wiggly and Squiggly, they realized the importance of working hard and working as a team. They realized that if they take shortcut in life, their life may be dangerous. They may not get the desired result. They quickly made their houses of straw or sticks that was not strong enough to protect them from the wolf. They did not do hard work. They did not
they wanted shortcut in life. They quickly made their house, and which was not strong, to protect them from the wolf. But now they realized the importance of hard work as well as working as a team. The three of them, when they worked together, they made a strong house. So the moral of the story is that we should work as team and we should work hard to succeed in life. Now, the exercises that we have done, if you have not seen the videos, please go through that. Go through the exercises that are done in the video classes and learn that. In case if you have any doubt, you can clear that in the online classes. Now we will start the exercise. Children, there is an exercise in your at the end of the chapter that I would like to take. That is, search for another word from the following from the story. There are certain words which are written. You have to find the words from the chapter which has similar meaning. Let me explain it once again. Some words are given. You have to find word which have same meaning from the chapter. कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उन्हीं वर्ड के मीनिंग वाले वर्ड चैप्टर में से ढूंढने हैं. मतलब वर्ड का मीनिंग सेम रहेगा, बट यू हैव टू फाइंड आउट दैट दोज वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ. सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. Search for, let me take marker. Another word. Search for another word for the following from the story. Okay, now look, the first word is evil or bad. Now as you can see, a word is written here. In fact, two words are written similar, evil or bad. Now, we know the meaning of bad, something which is not good. You have to find out word from the chapter which has this meaning. चैप्टर में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका ये मीनिंग है, बैड मीनिंग है, जिसका मीनिंग एविल है? कौन सा ऐसा वर्ड है चैप्टर में? दैट यू हैव टू सॉर्ट आउट, दैट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द चैप्टर. Children, I have explained you the meanings of difficult words of the chapter. उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे, डिफिकल्ट थे, जिनकी मीनिंग आपको मैंने बताए थे. कुछ आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी दिए थे. चिल्ड्रन, जो वर्ड है जिसका मीनिंग बैड होता है, दैट वर्ड इज विकेड, एंड दिस विकेड वर्ड इज यूज्ड फॉर द वुल्फ. अ विकेड वुल्फ केम टू लिव इन द फॉरेस्ट. ऐसा लिखा है ना सेंटेंस. A wicked wolf came to live in the forest. This word wicked का मतलब होता है bad. Wicked का मतलब होता है evil, जो दुष्ट जिसको बोलते हैं evil. So जो चैप्टर में जो वर्ड है वो वर्ड है WRECKED, and wicked का मतलब होता है bad. ओके, तो ये वर्ड यूज हुआ है चैप्टर में वुल्फ के लिए. नेक्स्ट वर्ड है अफ्रेड. नेक्स्ट वर्ड क्या है? अफ्रेड. अब अफ्रेड का मतलब होता है डरना. कौन सा ऐसा चैप्टर में वर्ड है जिसका कि ये मीनिंग होता है? चिल्ड्रन, यू नो दिस वर्ड इज स्केयर. यस, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स. SCARED. स्केयर्ड का मतलब होता है डरना. स्केयर्ड हैज सेम मीनिंग एज अफ्रेड. मतलब अफ्रेड का मीनिंग होता है स्केयर्ड, स्केयर्ड का मीनिंग होता है अफ्रेड. चैप्टर में आपकी ये वर्ड लिखा हुआ स्केयर्ड, एंड इट इज यूज्ड फॉर द पिग्स. द पिग्स वर स्केयर्ड. लिखा है ना लाइन.
The pigs were scared. So this scared means afraid. Next is collect. Now, which word in the chapter has same meaning as this one? Collect. Which word has this meaning? Children, the word is gather. G-A-T-H-E-R. Gather का मतलब होता है collect करना, to collect. And this gather word is used for Squiggly. Squiggly gathered straw from the farm and put them together to make his straw house, है ना? तो ये gather word के कब यूज किया है? जब Squiggly ने फार्म से straws gather किए, collect किए. Squiggly gathered straw from the nearby farm. तो ये जो gathered word है ये Squiggly के लिए यूज हुआ है चैप्टर में, which means to collect. तो Squiggly collected straw from the nearby farm. Next word क्या है? Complete. The word is complete. अब कौन सा ऐसा वर्ड है चैप्टर में जिसका मतलब होता है complete? चिल्ड्रन, ये वर्ड जो है आपका यूज तो चैप्टर में यूज हुआ है विगली के घर के जब बन रहा था तब, कि दे फिनिश्ड देयर वर्क. उसमें वर्ड है ना कि दे dug the sticks deep into the ground and finished making the house. ये जो finished वर्ड है which means complete. और फिनिश वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब कोई चीज खत्म हो जाती है. तो काम पूरा हो गया, काम खत्म हो गया, देन ऑल्सो जिससे, ठीक है. तो FINISH. फिनिश का मतलब होता है काम पूरा होना या कोई चीज खत्म हो जाना, ठीक है. द फूड इज फिनिश्ड मतलब फूड खत्म हो गया, या द वर्क इज फिनिश्ड काम पूरा हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है. तो ये वर्ड फिनिश यूज हुआ है स्क्विगली के घर के लिए कि they built the house with the stick and they finished their house. They finished making the house. ये word यूज हुआ है वहां पर, you can check it. नेक्स्ट वर्ड कौन सा है देख लेते हैं. नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट इंटेलिजेंट. Most intelligent. Now, which word in the chapter has this meaning? जिसका मतलब होता है most intelligent. Is there any word in the chapter which means most intelligent? Yes, there is a word and the word is wisest. ये यूज हुआ है किसके लिए? पिगली के लिए. पिगली was the wisest of all. तीनों पिग्स में से पिगली सबसे वाइजेस्ट था, मोस्ट इंटेलिजेंट. ओके, सो ये वर्ड यूज हुआ है पिगली के लिए चैप्टर में, दैट पिगली वाज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल. सो वाइजेस्ट इज द हैज सेम मीनिंग एज मोस्ट इंटेलिजेंट. ओके, नेक्स्ट इज नंबर 6. There is a word called built. Now, which word in the chapter has same meaning as built? कौन सा ऐसा word है जिसका मतलब होता है build? It is construct. Yes, construct. CONSTRUCT. ये construct word कहाँ यूज हुआ है? पिगली के लिए यूज हुआ है ना, कि पिगली was constructing his house. कंस्ट्रक्ट करना मतलब बिल्ड करना. पिगली वॉज कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस. सो द वर्ड कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू पिगलीज हाउस इन द चैप्टर. वहां पे आप देखेंगे जहां पे पिगली के घर के बारे में बताया है वहीं पे ये वर्ड यूज हुआ है कंस्ट्रक्ट, जिसका मतलब होता है टू बिल्ड, टू मेक समथिंग. ओके, सो ये आपका ये वाला एक्सरसाइज जो है बुक का ये हमने कंप्लीट कर लिया. यू कैन गो थ्रू इट.
आप एक बार देख सकते हैं इसको। So children, now we will take another exercise, and that is collective nouns, which is very interesting and important. Children, this exercise is given in your book in the form of one many. One many के फॉर्म में दिया हुआ है ये, ठीक है। One word for many is written. One word for many. Okay, one word for many, which is actually collective noun. वो actually में क्या है? Collective noun है। चिल्ड्रन, कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन होता है जब हम किसी एक ही टाइप के अगर चीज का कोई ग्रुप है तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप है और उस ग्रुप में जो चीजें हैं वो बिल्कुल सब एक जैसी हैं, सेम हैं, तो उनको हम एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और किसी एक रूम में अगर सारे बच्चे जो बैठे हैं वो सब 2 में पढ़ते हैं, ठीक है। एक रूम है उसमें सारे बच्चे 2 में पढ़ते हैं, ठीक है, और वो सारे स्टूडेंट चाहे 2 में पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते, चलिए सारे स्टूडेंट्स हैं एक रूम में, तो हम क्या बोलेंगे? क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि उस रूम में जो बैठे हैं वो सारे क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, तो वी विल से क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अगर उसमें स्टूडेंट्स नहीं बैठे होते, कोई दूसरे लोग बैठे होते, तब तो हम इसे क्लास ऑफ पीपल नहीं बोल सकते, पर क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हैं इसीलिए हम कहेंगे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्या किया? पूरे ग्रुप को, सारे स्टूडेंट्स को हमने एक नाम दे दिया क्लास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो की होती है जो हम लॉक में लगाते हैं, की, बहुत सारी कीज हैं, उसको आपने सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया। नाउ यू हैव मेनी कीज, तो आप ये नहीं बोलोगे मेनी कीज, यू विल से bunch of keys. What you will say? Bunch of keys. Got it? ऐसे ही ग्रेप्स हैं, अंगूर, एक अंगूर तो कोई नहीं खरीदता, वी हैव मेनी ग्रेप्स, एक साथ कई सारे ग्रेप्स होते हैं और वो एक साथ होते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड बंच ऑफ ग्रेप्स। वो क्या है? बंच ऑफ ग्रेप्स है। ऐसे ही बर्ड्स, एक बर्ड है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा बर्ड का अगर ग्रुप है तो आप क्या बोल सकते हो? फ्लाइट ऑफ बर्ड्स भी बोल सकते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी बोल सकते हैं। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ऐसे ही हमने पूरे ग्रुप को जो हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, या हम आपके ये बोल सकते हैं वन वर्ड फॉर मेनी, वन वर्ड फॉर मेनी। अगर आपको बहुत सारे कैटल्स दिखते हैं, गाय का ग्रुप है, गाय, बहुत सारी काउज हैं और वो मान लो ग्रेजिंग कर रही हैं, घास चर रही हैं, तो व्हाट यू विल से, वो कलेक्शन है, पूरा कलेक्शन है काउज का, तो आप उसको क्या बोलोगे कि कलेक्शन ऑफ काउज आर ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ काउज आर ग्रेजिंग? नो, विल से हर्ड ऑफ काउज। क्या बोलेंगे हम? हर्ड ऑफ काउज, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ कैटल, कलेक्शन ऑफ कैटल, जो पशु जिसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कैटल, तो हम कहते हैं हर्ड। अब इसको क्या बोलेंगे? हर्ड ऑफ काउस या हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ काउस। ऐसे ही अगर फिश है, कलेक्शन ऑफ फिश, अब कलेक्शन ऑफ फिश, मछलियां हैं, तो आप क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन, फिश के लिए 2 वर्ड यूज होता है, वन इज शोल ऑफ फिश या स्कूल ऑफ फिश भी होता है, स्कूल ऑफ फिश या शोल ऑफ फिश, SHOAL, शोल, SHOAL, शोल ऑफ फिश या स्कूल ऑफ फिश।
नेक्स्ट है, इस चैप्टर में कौन सा एनिमल है, एक जो विकेट है, वुल्फ, अ कलेक्शन ऑफ वुल्फ। वुल्फ सॉरी एक से ज्यादा है तो वुल्फ ही होगा ना। कैटल अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है, इसीलिए मैंने एस नहीं लगा। फिश का प्लूरल फिश ही होता है, फिश का प्लूरल फिश। सो वुल्व्स एक से ज्यादा वुल्फ है, इसलिए वुल्व्स, अ कलेक्शन ऑफ वुल्व्स। तो हम यूज करते हैं वर्ड पूरे ग्रुप को, कलेक्शन ऑफ अगर वुल्व्स हैं, ग्रुप ऑफ वुल्व्स हैं, तो वी विल कॉल इट पैक ऑफ वुल्व्स। क्या बोलेंगे? पैक, PACK। टुडे ये जो पैक वर्ड है ना, ये पैक बहुत से ग्रुप के लिए यूज होता है। पैक ऑफ कार्ड्स भी बोला जाता है, जो कार्ड्स खेलते हैं पैक ऑफ कार्ड्स कहते हैं, पैक ऑफ वुल्व्स बोलते हैं, ठीक है। तो और भी कई एनिमल्स के लिए ये यूज होता है पैक वर्ड, बहुत सारे एनिमल्स के लिए पैक वर्ड यूज होता है। आपकी बुक में सिर्फ ये वुल्व्स के लिए बताया गया है, बट अदरवाइज ये और भी कई एनिमल्स के लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एज पर योर बुक, देन आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा ऑल्सो, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता दूंगी मैं। कलेक्शन ऑफ बीज, बीज मतलब जो मधुमक्खी होती हैं उनको, उनका अगर ग्रुप है कलेक्शन ऑफ बीज। ऐसे तो आपने हाइव ऑफ बीज सुना होगा, लेकिन वो बी का हाइव मतलब उसका घर है। हाइव जो है वो मधुमक्खी का घर होता है, ठीक, जिसमें कि मधुमक्खियां ऐसे चिपकी रहती हैं। आपने कहीं देखा होगा ना पेड़ पे या किसी पुराने से घर के कॉर्नर में लगा रहता है हाइव, और उसमें खूब सारी मधुमक्खियां बैठी होती है, बीज बैठी होती है, जिन्हें देख के डर भी लगता है हमें, है ना, कि कहीं हमें स्टिंग ना कर दे। तो वो जो ग्रुप है वो तो उनका घर में है, हाइव में है। लेकिन अदरवाइज अगर आप जब ग्रुप ऑफ बीज देखोगे, कलेक्शन ऑफ बीज देखोगे, तो उससे आप क्या बोलोगे? स्वैर्म ऑफ बीज। क्या बोलेंगे उसको? स्वैर्म, SWARM, इट इज कॉल्ड स्वैर्म ऑफ बीज। मधुमक्खी का ग्रुप होता है, उसको कहते हैं स्वैर्म ऑफ बीज। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स अगर है ग्रुप में, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, उसको हम दो, हमारे पास उसके लिए वर्ड है। एक है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, दूसरा फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। दोनों ही हैं बोला जाता है, बट सिंस आपके बुक में फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एंड फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इज ऑल्सो करेक्ट। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ऐसे फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स भी कहा जाता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम ये लिख लेते हैं FLOCK। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मीन्स ग्रुप ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है और फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स भी कहा जाता है। जो सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां से ऊपर पर जाती है, तो उसको भी फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहा जाता है। अगर सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी नहीं, सीढ़ियां, स्टेयर्स, तो उसको कहते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। देन है आपका कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल। जो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा जो ग्रुप होता है लोगों का, आपको नहीं पता कि वो उनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा है, पूरा ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड क्राउड। क्राउड ऑफ पीपल, भीड़ बोलते हैं, लोगों की बहुत भीड़ थी, दैट इज कॉल्ड क्राउड ऑफ पीपल। वी कॉल इट क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का भीड़, क्राउड ऑफ पीपल, ये यूज होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। देन यू हैव
या गैदरिंग ऑफ पीपल को भी हम क्राउड बोल सकते हैं। कलेक्शन की जगह हम इसको गैदरिंग बोलते हैं तो ज्यादा बेटर है, गैदरिंग ऑफ पीपल, क्योंकि कलेक्शन तो सामान तो है, गैदरिंग लेते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल को मॉब भी बोला जाता है, MOB, मॉब। ग्रुप ऑफ पीपल को मॉब ऑफ पीपल भी कहा जाता है, क्राउड ऑफ पीपल भी कहा जाता है। MOB मॉब लिखेंगे तो भी सही है, CROWD क्राउड लिखेंगे देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। देन नंबर 7 इज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस मतलब कुछ भी बजाने वाले, गिटार बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, बैंको है, बैंजो बोलते क्या बोलते हैं उसको, देन ड्रम है, ट्रम्पेट है। तो पूरा जो ग्रुप है म्यूजिशियंस का उसको क्या कहा जाता है? बैंड, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब उसमें सारे म्यूजिशियंस होंगे, दे मे बी प्लेइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। वो म्यूजिशियन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, पर हैं तो सारे म्यूजिशियंस, चाहे वो फ्लूट बजा रहे हैं, चाहे गिटार बजा रहे हैं, या सितार बजा रहे हैं, या तबला बजा रहे हैं, पर सारे म्यूजिशियंस हैं। तो उनका जो पूरा ग्रुप होगा उसको कहेंगे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। दे आर कॉल्ड बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये हो गया। अभी कुछ और है, इनको मैं आप देख लीजिए तो फिर मैं इन्हें इरेज करके देन आई विल राइट सम मोर। नंबर 8, नंबर 8 में है अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। एक अगर फ्लावर है तो उसको तो हमने फ्लावर बोल दिया, लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स हैं, पर कभी कभी क्या होता है 4-5 फूल ऐसे हाथ में पकड़ लेते, दैट इज बंच ऑफ फ्लावर्स, लेकिन उसको प्रॉपरली अरेंज कर दिया है फ्लावर्स के ग्रुप, कलेक्शन ऑफ फ्लावर है एंड वी हैव अरेंज्ड इट प्रॉपरली, इट इज कॉल्ड बुके ऑफ फ्लावर्स। इट इज कॉल्ड बुके ऑफ फ्लावर्स। बुके का स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको लर्न करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड BOUQUET। उसको बॉन्क्वेट नहीं बोलना है, ठीक है? इट इज कॉल्ड बुके, बॉन्क्वेट नहीं बोलेंगे, BOUQUET, BOUQUET। This is Q. Let me write it again. BOUQUET। Pronunciation इसका है बुके। We pronounce this word as बुके, not boquet. Boquet नहीं बोलना है, BOUQUET is not boquet, it is बुके। Pronunciation is बुके। Collection of flowers is called bouquet. Okay, collection of flowers is called bouquet. तो ये आपके बुक में जो दिए हुए थे कलेक्टिव नाउन्स वो थे, बट देयर आर मेनी मोर कलेक्टिव नाउन्स। इंग्लिश में तो बहुत सारे हैं कलेक्टिव नाउन्स जिनके बारे में आप जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। टीम ऑफ प्लेयर्स, कॉयर ऑफ सिंगर्स, जो सिंगर्स का जो ग्रुप होता है गाने वालों का, उनको बोलते हैं कॉयर ऑफ सिंगर्स। अगर प्लेयर्स का ग्रुप है तो टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है? फिर उसी तरह से अगर बुक्स, बहुत सारी बुक्स होती है तो उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स।
अगर बहुत सारे आउल हैं, आउल्स जो उल्लू बोलते हैं, बहुत सारे आउल्स हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं पता है आपको? पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। यस। और क्रो का तो बहुत ही फनी है, अगर बहुत सारे क्रो हैं तो कहते हैं मर्डर ऑफ क्रोज। यस, मर्डर ऑफ क्रोज। तो ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन है, एंड ग्रेजुअली जब आप आगे क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो इसके साथ ही हमारा जो ये वाला एक्सरसाइज है दैट इज ओवर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू सम मोर, विल डू द रिविजन वर्क फर्दर। आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।